So, dear students, we studied in our previous class, we studied about till resistivity. Let us recall some of the formulas which we have done. So, Yuvraj, Arnav, all of you, Rakshita, now be ready. And what is charge? The formula for charge in Coulomb, Q is equal to NA. Electrical work done, W is equal to VQ joules. Electric current, I is equal to Q by T. Ohm's law we studied, V is equal to IR, where R is the resistance. Then we had gone to resistivity, and the formula for resistivity was R is equal to rho L by A. These are the resistivities of certain materials. Gold 2.4 into 10 to the power minus 8 ohm meters, copper 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meters, aluminum 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meters. Normally electrical wires, their resistance is of this order, 10 to the power minus 8 ohm meters, and they conduct electricity, and we use them to make wires, etc. There are some things are called insulators which do not allow the flow of electric current. Their resistivity is very high. That may range, so conductors may range from 10 to the power minus 2 ohm meter to 10 to the power minus 8 ohm meters, and insulators 10 to the power 11 ohm meter to 10 to the power minus 19 ohm meters. So suppose we are in a factory, we have to understand this, isn't it? We have to understand we are in a factory, then we have to understand when we are making wire, what should be the resistance so that the current can get supplied through things. Alright, so knowledge of resistivity comes to use. Also remember that resistivity does not change. Suppose we stretch a wire. Suppose first thing is that suppose this is of some length and same material double the length. So if there is a wire, suppose, say for example this wire is of 10 meter and its resistance is 16 ohms. So if I cut it into two equal parts, so the thickness won't change because I am cutting it. So each one will have 5 ohms. So if you know the resistance of a particular wire, then if you double the length of the same wire, the resistance of double the length of the same wire will be double. अगर आपके पास 5 ओम का रेजिस्टेंस का गोल्ड का तार है, तो अगर उसके दुगने लंबाई का सेम थिकनेस का गोल्ड का तार है तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम होगा. तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी, सेम नंबर ऑफ टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. उसी तरह से उल्टा भी है. अगर आपके पास कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस 20 ओम्स है, उस वायर को अपने बीच से एकदम 2 बराबर थिकनेस के संदर्भ में हाफ कर दिया, तो फिर रेजिस्टेंस ईच पार्ट का डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अगर 5 मीटर लंबा वायर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 मीटर स्क्वायर है मान लीजिए, तो आप बीच से काट देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, तो पहले रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो हर बटा हुआ पार्ट का रेजिस्टेंस 8 ओम हो जाएगा. यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर दिए तो रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो दुगना हो जाएगा. यानी जैसे जैसे वायर पतला होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे वायर लंबा होगा इससे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. इसीलिए आप देखते हैं कि पुराने ज़माने के इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता था, बल्ब का फिलामेंट होता था, जो बल्ब आपका ऐसे, और जो बल्ब का फिलामेंट अंदर में आप देखते थे वो बहुत पतला होता था, क्योंकि बल्ब वो उस फिलामेंट को हीट होना तभी वो ग्लो करेगा. तो बहुत पतला, और जिगजैग करने का मतलब लंबा किया हुआ था, तो उससे क्या होता था, डबल फ़ायदा होता था पतला और लंबा होने से. पतला होने से भी रेजिस्टेंस हाई और लंबा होने से भी रेजिस्टेंस हाई. यानी अगर वायर जितना था उसे 10 टाइम्स पतला कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस 10 गुना बढ़ गया, और 10 टाइम्स लंबा कर दिए तो रेजिस्टेंस 10, यानी टोटल 100 गुना बढ़ गया. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस फिर वो हीट उतना ज़्यादा होता था, तो फिर ग्लो करता था. टंगस्टन यूज़ करते थे, टंगस्टन ग्लो तो करता था, बहुत ज़्यादा हीट भी जाता था, लेकिन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो गल के गिरता नहीं था, ख़राब नहीं होता था, बहुत दिन तक चलता था. तो ये सब बातें रेजिस्टिविटी की. एक क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है जिसको कॉमन सेंस लगाना है, कि अगर हम किसी वायर को काटे नहीं बल्कि उसको स्ट्रेच कर दें, अगर ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाइए, ज़्यादा
और सीधा सीधे अगर कोई वायर है जिसका लंबाई एल है, इसको खींच के n टाइम्स अगर कर देंगे तो खींचने के चलते इसका n टाइम्स है, मतलब अगर 4 गुना कर देंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन ये जब खींचेंगे तो पतला भी हो जाएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना था, तो इमेजिन कीजिए मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया जा सकता है बाद में कि अगर हम इसको खींच के 4 गुना कर देंगे तो जो नया वायर आएगा पतला हो जाएगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना कम हो जाएगा। तो जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा 4 गुना, तो रेसिस्टेंस उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी लंबाई बढ़ा तो 4 गुना बढ़ा रेसिस्टेंस, और खींच के पतला किया तो 4 गुना और बढ़ गया, यानी टोटल कितना बढ़ेगा 16 गुना। यानी जब भी व्हेनेवर वी स्ट्रेच अ वायर, तो जितने टाइम स्ट्रेच करते हैं रेसिस्टेंस उतना टाइम लंबाई के चलते बढ़ता है और उतना ही टाइम्स थिकनेस कम होने के चलते बढ़ता है। यानी n टाइम्स अगर हम खींच के लंबा किए तो n स्क्वायर टाइम्स रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और आपको गूगली क्वेश्चन देता है, कहेगा व्हाट विल हैपन टू द रेसिस्टिविटी, हमेशा ऐड किए रहेगा। तो इससे रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। आर यू फॉलोइंग? तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी हम ये वायर है तो इसको हम n टाइम्स खींचेंगे तो इसका लेंथ n टाइम्स बढ़ेगा और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स घट जाएगा, पतला हो जाएगा। तो n टाइम्स बढ़ने से रेसिस्टेंस n टाइम्स बढ़ा और n टाइम्स घटने से रेसिस्टेंस n टाइम्स बढ़ा था, यानी टोटल n इंटू n स्क्वायर टाइम्स। यानी जैसे ही अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं युवराज आप लोग से, रक्षिता आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्वेश्चन, अनुश्रुति आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मुस्कान, अनिका, आर्या, रशिका, बताइएगा आप लोग कि अगर 4 गुना बढ़ा देंगे, वायर को खींच के स्ट्रेच कर देंगे 4 गुना, तो व्हाट विल हैपन? या 16 टाइम्स, 4 टाइम्स ड्यू टू लेंथ एंड इंक्रीज एंड 4 टाइम्स ड्यू टू थिकनेस डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि अगर किसी वायर का नाम अर्नव, युवराज, you all tell me, ऋषि, हर्ष, सिद्धार्थ, टेल मी, अगर किसी वायर का को स्ट्रेच करके 10 गुना कर दें, यस वेरी गुड, 100 टाइम्स, क्योंकि 10 टाइम्स लेंथ के चलते बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने के चलते, और 10 टाइम्स उसके पतला होने से, तो 10 इंटू 10 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेसिस्टिविटी। हाँ, अगर रेसिस्टिविटी पूछता है तो वो चेंज नहीं करेगा। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ वी मूव टू रेसिस्टर। कहते हैं किसको? रेसिस्टर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पर, बड़ा मज़ेदार है ये। अगर हम एक वायर ऐसे ले लिए और इस वायर में हमने 3 बल्ब लगा दिया, तीन बल्ब लगाए हम लोग ने इस वायर में, ये ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे गया तीनों में, तो इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज बल्ब आपने देखा होगा, तो सीरीज कनेक्शन, एक तार होता है उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं। सीरीज कनेक्शन में देखिए ध्यान से, हम जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज इसको सप्लाई कर रहे हैं, आई करंट बह रहा है इसमें, तो सब में से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट सब में सेम जाएगा, एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का, तो इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। यही हो गया इसका पिक्टोरियल रेजिस्टेंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यही हो गया। अब यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई आपने V किया है, करंट I बह रहा है, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट ऐसा है, इट इज़ जस्ट लाइक यू नो यू आर मूविंग इन अ वेरी वेरी religious place where there is a big line and people are going and coming and taking circle around and going, and like since there is a lot of rush, so people go and just have a look at the present things in front and they go ahead. तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी ऐसे ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ड्रिफ्ट हो रहा है तो इस पर चल रहा है, इस पर चल रहा है, इस पर चल रहा है, ऐसे जा रहा है। और अब डिपेंड करता है वो रास्ता कैसा है। कहीं पर रास्ता आपको ढलाव है, देयर इज़ अ स्लाइड,
तो और डिक्लिनेशन, सो सिंस यू हैव टू मेंटेन द सेम स्पीड, क्योंकि आगे वाले को धक्का नहीं मार दे, तो वहाँ पर आपका जो फोर्स है वो ज़्यादा लगे आपको रोकने के लिए, और कहीं कहीं पर क्या है कि चढ़ाई है तो आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज अ ड्राइविंग फोर्स विच पुशेज द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो विथ अ पर्टिकुलर स्पीड। सो डिपेंडिंग अपॉन कैसा ढलाव है, रेसिस्टेंस का मतलब कहीं ढलाव कहीं चढ़ाव है, तो द वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इन सीरीज कनेक्शन द वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, द करंट रिमेन्स द सेम, रिमेंबर दिस। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो अलग अलग रेसिस्टर्स के हिसाब से बढ़ गया। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये 3 मैंने लगाया 1000 भी हो सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या क्या खास बात है नोट कर लीजिए, इसको रिवाइंड कीजिए, नोट कीजिए। पहला, द वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, द करंट रिमेन्स द सेम। द वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, द करंट रिमेन्स द सेम। सेकेंड है कि इफ वन ऑफ द अप्लायंस बाई चांस डज नॉट वर्क, then the whole all the 3 appliances or 4 appliances or anything in that wire will not work. See, current goes and stops. So that is very very important point कि सीरीज कनेक्शन को पहचानने का तरीका भी वही है कि एक वायर में अगर एक ही रास्ता और डिफरेंट अप्लायंस जुटे हुए तो वो सीरीज कनेक्शन में, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर अब मान लीजिए तो वोल्टेज बदल गया, तो अगर हम इन तीनों को हटा के एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमें ओम्स लॉ के हिसाब से मालूम है V इज इक्वल टू IR। तो इन सब को हटा के एक R वाला लगा देना है। तो V1 अगर अब उसको छोड़ दीजिए, अब अगर V1 में हमको चाहिए, कहीं पर भी हमको वोल्टेज चाहिए तो उसमें जाता हुआ करंट को उसके रेजिस्टेंस से गुना करेंगे। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, I, तीनों में तो सेम जा रहा है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ये जा रहा है, isn't it? तो हम I को कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो I कट जाएगा, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत इजी है, एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। बच्चा वाला क्वेश्चन है, एडिंग है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया 7 ओम, 8 ओम, 5 ओम, यहाँ पर 80 वोल्ट। सीधा सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R विल बी इक्वल टू 8 प्लस 7 प्लस 5, 20 ओम्स। जब एक बार सीरीज वाले वायर में आप निकाल लिए, याद रखिए वायर में तीनों सीरीज में हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो अब आपको करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ हमेशा काम आएगा, V बाई R, यानी 80/20, यानी 4 एम्पियर्स का करंट बह रहा है सब में। तो ओम्स लॉ ATM के समान है, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो उसको निकाल कर। अगर कोई पूछे कि अब इसका वोल्टेज बताओ, तो सब में सेम करंट जा रहा है 4 एम्पियर, तो यहाँ पर 4 गया, तो V इज इक्वल टू IR, तो R जानते हैं 7 है और I जानते हैं 4 है, तो 7 4 28 ये हो गया। इसमें भी 4 एम्पियर करंट जा रहा था, ये 28 वोल्ट हो गया। इसमें 4 जा रहा था, ये 32 वोल्ट हो गया। 32 और 28 आपको 60 हो गया। इसमें 4 जा रहा है 20 वोल्ट, टोटल मिला के 80 वोल्ट है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीरीज में क्या समझे, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? कि करंट रिमेन्स द सेम, तो करंट से मालूम कर लेंगे टोटल का, तो वही छोटे छोटे में जाएगा, तो अलग अलग वोल्टेज भी निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। और ये भी जान लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि सबका सम है, तो सबसे बड़ा वाला से भी बड़ा आंसर आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये आप समझ गए। सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग देखते हैं दशहरा पूजा में जो डेकोरेशन लाइट होता है ऊपर से नीचे तक, जो पुराने ज़माने वाले जो सीरीज कनेक्शंस होते, तो उसमें अगर आप बीच में कहीं जल रहा है बहुत सारा, हम लोग का बच्चा में ये अम्यूज़मेंट था, जल रहा था, हमको गलती इंक्विजिटिवली एक हम तोड़ दिए, देन व्हाट विल हैपन? वो पूरा वायर में नहीं जलेगा, बेचारा इलेक्ट्रिशियन आके खोजना पड़ेगा उसे कि कहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ। जब तक वह नहीं जुटेगा वो पर्टिकुलर वायर में जितना भी बल्ब है वो नहीं जलेगा, समझे? अब
अब नेक्स्ट है लेकिन हम लोग के घर में ऐसा नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए घर में रहता है तो फिर एक बल्ब ऑफ करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा। बाथरूम में आप गए बल्ब ऑन किए तो किचन का भी बल्ब ऑन हो जाएगा। तो घर में क्या व्यवस्था होता है, लेट अस सी। घर में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें ऐसे होता है, एक बंटू के रूम में बल्ब जल रहा है, एक चिंटू के रूम में बल्ब जल रहा है, एक लाजवंती के रूम में बल्ब जल रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम इसको ऑफ कर भी दिए तो बाकी दो में जल रहा है। दोनों दो ऑफ कर दे, तीसरा तो जलेगा ही जलेगा, इसका बता मिला देते हैं। तो और यहाँ पर वोल्टेज सेम तीनों को मिलेगा क्योंकि तीनों सोर्स से रिसीव कर रहा है ताकत, लेकिन करंट अलग अलग जा सकता है। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज़्यादा जाएगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे करंट कम जाएगा। यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन जरा बना दिया जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट अस चेक पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान से लिख लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन्स द सेम एंड द करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज रिमेन्स द सेम एंड द करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं अपने ढंग से। मान लीजिए सोर्स है, तार हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं सोर्स को, और इस एक ही तार है, यहाँ से तीन, इस रास्ते से एक बल्ब लटकाया हुआ है जो कि सोर्स से मिल जाता है, फिर दूसरे रास्ते से दूसरा बल्ब लटकाया हुआ जो कि सोर्स से मिल जाता है। यानी ये बल्ब ये वाला हो गया R1, R2, R3, V। देन व्हाट विल हैपन, लेट अस हैव अ लुक। क्या हो रहा है, आराम से समझिए। करंट ऐसे आया और ऐसे जा रहा है जब, तो तीन रास्तों से अगर हम इसको बंद भी कर दें तो दूसरा वाला बाकी दो चालू रहेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर चूँकि जानते हैं करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर हम I करंट भेज रहे हैं तो पहला वाला में I1 गया, दूसरा वाला में I2 गया और तीसरा वाला में I3 गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी अगर हम इस पार्ट को बड़ा करके दिखाएं आपको तो क्या हो रहा है, ये बैटरी से जुटा हुआ है, इजंट इट। ये बैटरी, तो इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है। अब इन तीनों को हटा के टोटल करंट तो हम मुझे मालूम है कि I जा रहा है, तो इन तीनों को हटा के अगर हम एक बड़ा रेसिस्टेंस रखना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन। एक बड़ा रेसिस्टेंस अगर रखना चाहते हैं तो व्हाट विल हैपन, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R। तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, सबों को तो सेम वोल्टेज है तो V कॉमन हो जाएगा, तो V कॉमन लेके काट देंगे तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। So these two are the formula for series connection and parallel connection. Series connection is the equivalent resistance is, लिख लीजिएगा फिर से मैं बोल रहा हूँ, equivalent resistance is sum of individual resistances, and parallel combination में the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. इसमें भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं. Let us have some board space. तो what I'll do, okay, I'm going to rub off all these things. So rewind करके इसको आप पॉज करके इसके डेराइवेशंस को लिख लीजिएगा. Now let us see, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक दो. So let us see.
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। अब हमें लगता है कि इसका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एलसीएम, व्हाट शुड बी द एलसीएम, 5, 4 और 6 का 60 होगा। 15, 12, 10। सो 1/R इज इक्वल टू 15 और 12, 27 और 10, 37/60। सो R will be equal to 60/37 ohms. So this is what is one of the sums to that has been done for you. So ये अब जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, देखिए 37 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, अगर प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो पूरे रेजिस्टर्स में सबसे छोटा उससे भी छोटा होगा। कभी कभी आपको पूछेगा कि 6 और 3 को कैसे प्लेस करें कि 3 से भी कम रेजिस्टेंस का आंसर है, तो पैरेलल। और 6 और 3 को कैसे प्लेस करें कि कंबाइन करें कि रेजिस्टेंस 6 से ज़्यादा है, तो फिर सीरीज। तो लाइक दैट। अब अगर 2 वाला में अगर अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपका आ गया, मान लीजिए इसमें आपको 6 ओम दिया हुआ है, इसमें आपको 3 ओम दिया हुआ है, इसमें आपको दे दिया है से फॉर एग्जांपल 18 वोल्ट। पूछता है कि कितना करंट जा रहा है दोनों में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए और साथ साथ कितना करंट जा रहा है बताइए। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मैं ऐसे भी निकाल सकते थे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस है तो मैथमेटिकली हम लोग कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे R1 इंटू R2 और ये R1 प्लस R2, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 2 के लिए हम लोग खुद से बना सकते हैं मैथ्स यूज़ करके। पहले एलसीएम लिया और फिर ये सम आएगा, उलट देंगे तो ईजी हो जाएगा, उसको वाइस वर्सा कर देंगे, देन इट बिकम्स वेरी इजी। यानी अभी हम डायरेक्ट बना सकते हैं R इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम, यानी 2 ओम्स आ गया। यानी जब भी 2 रेसिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R करने की जरूरत नहीं, सीधे दोनों को गुना करके डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो ये तो आसान हो गया, 2 ओम्स। अब हमको से पूछ रहा है कि भाई 2 ओम्स हो गया तो करंट टोटल कितना जा रहा है भाई, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू V/R, यानी 9 एम्पियर जा रहा है, 9 एम्पियर जा रहा है। इसको दूसरे तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I बराबर होता है V/R, तो I बराबर V/R, तो वोल्टेज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया था, रिवाइंड करके देखिए हमने लिखा है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज रिमेन्स द सेम। यानी इसके लिए इसका वोल्टेज बाई इसका रेजिस्टेंस 18/6, यानी इसमें 3 ओम जा रहा है, यानी 6 ओम वाले रेजिस्टर्स में 3 एम्पियर करंट जा रहा है, और दूसरा वाला में 18/3 यानी 6 एम्पियर करंट जा रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 9। अब बार बार रिवाइंड करके समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरीका है करंट निकालने का, अगर प्योर पैरेलल है तो पहले टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा 9। दूसरा है कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर प्योर पैरेलल है तो, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है ना, ऊपर वाले के लिए वोल्टेज 18 यूज़ करेंगे और नीचे वाले के लिए वोल्टेज 18, दोनों को ऐड कर देंगे। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। वी विल मीट नेक्स्ट very soon. Thank you.